Namaste ji, namaste. So let us take a look at few of the questions that showed up in BHU's LLB 2020 exam, and these will give you a very fair idea of what to do, how to think, and if you don't know any of these, it's absolutely okay. Well, then we work on those areas, right? So which Governor General started the Indian Civil Services? Now this is a classic question from pre-constitutional history. Chapter number perhaps 1 and 2 of Lakshmikant contains all such details: who was the first Governor General, who was the first Governor, Governor General of Bengal, Governor General of India, Viceroy, etc. So this question gives you a hint that you need to cover that. So which Governor General started the Indian Civil Services? It's Cornwallis. This is a very standard, very easy MCQ. These are like marks on a platter. तो कृपया करके ये चीज़ अगर आपको कोई कोई आइडिया नहीं कि ये क्या चीज़, ये क्या पूछ रहे हैं भैया, मुझे नहीं पता, ये नाम सुने सुनने तो लग रहे हैं, विलियम बेंटिंग, किसी ने सती एबॉलिश करी थी, कोई पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ चल रहा है, लेकिन आंसर अगर ये है तो अब कहाँ से पढ़ाई की जाए? तो ये तो चलो रट्टा तो मार लेंगे। लक्ष्मीकांत के पहले 2 चैप्टर्स में ये सब बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सिस्टमैटिकली, रेगुलेटिंग एक्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स, एवरीथिंग हैज़ बीन गिवन वेरी सिस्टमैटिकली देयर। मात्र आई बिलीव आधे पौने घंटे का काम है, ये आप चीज़ वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन अपनी निकाल सकते हैं। Now, Indian polity, which one of the following is supreme? So this is perhaps a common sense based question. So which is supreme? The Supreme Court के under the word supreme already exists, but the Supreme Court has to function according to the Constitution of India, because the Constitution of India only is creating the Supreme Court article 124, right? Then we come to Constitution. This is a good option, so we will basically stick to this for now. The Parliament also is being even created by the Constitution. 79 में लिखा है ना, President, Article 79 के अंदर President, Lok Sabha, Rajya Sabha comprises the Parliament. Parliament also, everything, लोक सभा में क्या होगा, स्पीकर होगा, अब आर्टिकल 88 के तहत मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल इधर उधर पार्टिसिपेट करेंगे, दे हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स विदाउट इवन being a member, etc. So the parliament also has to function. So absolute freedom of speech given in article 105. अगर ये सब नहीं समझ में आ रहा है तो पॉलिटी पढ़ाई करने की ज़रूरत है, right? Religion is not supreme because we are a secular state, so we really don't care. Whatever the strength of your religion, the state does not care, theoretically speaking. All right. So therefore, what becomes supreme? तो लड़ाई basically ये 3 almost close options हैं, but I would go with the constitution, क्योंकि जो constitution खाएगी, सुप्रीम कोर्ट को भी मानना है, पार्लियामेंट को भी मानना है, तो which one is supreme? Absolutely the constitution. Now, which one of the following has not been a constitutional body? Now, what are these constitutional bodies? Anything that is being created due to the constitution mentioning that there should be such a body is a constitutional body. UPSC is mentioned in the constitution that there shall be a UPSC, article 317, correct? State public service commissions are mentioned in the preceding articles onwards from 370. Finance commission is mentioned in the 280. अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पूछी है तो स्टैट्यूटरी बॉडी भी पूछ सकता है, तो ये टॉपिक आप रिवाइज करेंगे। पहले आप समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी है क्या। इस चैनल पे एक लेक्चर पड़ा हुआ है in which that has been explained. So the answer becomes which of the following has not been, actually is not होना चाहिए, has not been, पता नहीं कौन सी इंग्लिश इन्होंने यूज करी है। नीति आयोग, नाउ होमवर्क फॉर यू। नीति का फुल फॉर्म, इस टाइम पे सीईओ कौन है, इस टाइम पे चेयरमैन कौन है, and it is actually an executive body, that is it was created not even by a statute. So a statutory body is which is created by a statute such as NHRC. A statute, an act will tell you create this body. If a constitution is telling you, well then it's a constitutional body. It's as simple as that. नीति आयोग में ना तो कोई एक्ट पास हुई, प्लानिंग कमीशन का भी यही स्टेटस था जिसके सक्सेसर हैं, इनफैक्ट नाम की बदली करी है हमने, है तो ये वही फंडा। तो अब आपके लिए होमवर्क, नीति आयोग के बारे में भी पढ़ लीजिएगा, फुल फॉर्म वगैरह क्या है, फुल फॉर्म का पूछना है, इनके लॉ एंट्रेंस में बहुत ज़्यादा है, तो आई वुड से अ डिसेंट लेवल क्वेश्चन, बट स्टिल मतलब एक्सट्रीमली ईजी। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, अरे इसका तो आंसर ऑलरेडी दे चुके हैं अभी, आर्टिकल 79 में, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा,
राइट, दैट इज व्हाट द पार्लियामेंट कंसिस्ट। कभी कभार आपको किसी और लॉ एंट्रीज में दिखेगा यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होता है, कुछ होता है, आपने याद रखना है। अच्छा, याद क्यों रखना है? क्योंकि आर्टिकल 79, अगर इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ऑन द आर्टिकल, बाय द वे कभी कभार बोलते डाउट आ जाता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। भाई देवता थोड़ा ना, इंसान ही, थोड़ी बहुत गलती हो भी जाती है, करेक्ट मी इन द कमेंट्स इफ आई एम रॉन्ग, बट वेल द आंसर इज करेक्ट डेफिनेटली। अच्छा, अब चलते हैं आगे। Who nominates the chairman of the Public Accounts Committee of the Indian Parliament? It is definitely the Speaker of Lok Sabha, but यहाँ पे मेरा हीरो बनने का अवसर है, बट मैं बनूंगा नहीं, क्योंकि मेरे लिए बोलना आसान है। दिस इज अ टफ क्वेश्चन, दिस इज एन आइदर यू नो इट और यू डोंट नो इट, बिकॉज आधे से ज़्यादा जनता प्राइम मिनिस्टर मार्क करके आएगी, प्रेसिडेंट तो शायद कोई मार्क करे, मतलब अगर आप कॉमन सेंस से एलिमिनेशन टेक्निक से भी चलेंगे, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा शायद ही कोई मार्क करे, फंसेंगे आप इन दोनों ऑप्शंस में। नाउ आइदर दिस इज यू नो इट और यू डोंट नो इट क्वेश्चन। यू कैन पॉज दिस लेक्चर हियर, गो टू गूगल, टाइप इन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, तो मतलब काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे आपको बहुत इसके बारे में ज्ञान मिल जाएगा। आइदर ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चले जाएगा लोकसभा की, and just take out your notes. This is a topic indeed to cover. This is Speaker of the Lok Sabha is nominating. Now this is an either you know it or you don't know it. आ गया ठीक है, नहीं आया तो फिर BHU है कहीं हरिश्चंद्र घाट के आसपास ही काम होगा, उसके अलावा तो कुछ होना नहीं है। The Finance Commission has laid down in Article 280 of the Constitution. So seems the examiner is liking articles. We'll see. The Finance Commission is laid down in Article 280 of the Constitution is constituted by, it has to be the President. Usually ये सारे काम प्रेसिडेंट ही कर, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, तो क्या ये क्या कहाँ कमेटी और कौन सी कमीशन करेगा? प्राइम मिनिस्टर के पास हमने कभी इतनी पावर दे नहीं रखी, क्योंकि अगर ये कमेटियाँ और कमीशनें आपकी कॉन्स्टिट्यूट करते रहे तो फिर हो गया काम। बिकॉज एक्चुअली फाइनेंस कमीशन क्या कर रही है, फाइनेंस कमीशन के रोल्स क्या क्या हैं? सो दिस इज गिविंग यू अ हिंट। फाइनेंस कमीशन करती क्या है, पहले चेयरमैन कौन थे, इस टाइम पे चेयरमैन कौन है, अभी उनका टेन्योर एक्सटेंड किया गया है। आई बिलीव द प्रेसिडेंट पार्लियामेंट इज एनीवे अ फनी ऑप्शन, वी थ्रो इट आउट ऑफ द विंडो, राइट? पॉज द लेक्चर हियर, नाउ गो लुक अप फाइनेंस कमीशन एंड कम। दिस इज हाउ यू मेक यूज ऑफ दीज लेक्चर। ऐसे मतलब फटाफट मैं ये आंसर वो आंसर बता दूं तो उसके अंदर क्या होगा कि मतलब वो, आई बिलीव देयर विल बी 10 ट्रिलियन लेक्चर्स सच एज दिस ओनली ऑन यूट्यूब ऑलरेडी, तो वो तो आप आई थिंक देख भी चुके होंगे। सो टू मेक मैक्सिमम यूज, pause after each and every question. If your notes are not ready on that topic, well then you create those notes. अब पढ़ना तो पड़ेगा ही अगर आगे जाना है, और जो लोग ये काम नहीं करते, ठीक है, नसीब बेस्ड, अगर किस्मत बेस्ड एंट्रेंस क्लियर हो जाए, वेल ग्रेट। अगर नहीं हुई, क्योंकि मोस्टली नहीं होगी, तो फिर ये काम तो करना ही पड़ेगा कि आपको अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे। दिस इज हाउ यू यूज पास्ट ईयर क्वेश्चंस। हु अमंग द फॉलोइंग शैल प्रिसाइड ओवर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट? So this article is 118 होना चाहिए, 118 है, राइट? आई विल जस्ट लिंक द आर्टिकल्स वाला वीडियो अप हियर। या मैंने बताया हुआ है इसके अंदर कि आर्टिकल्स कौन कौन से आपको किसी भी लॉ एंट्रेंस के लिए, चाहे वो LLM हो चाहे वो LLB हो, आपने करने, ठीक है जी? So whom the following shall preside over? So it's always the speaker of a Lok Sabha presides over a joint sitting. Now मेरा प्रश्न आपको ये है कि whether a joint sitting is available in a constitutional amendment and is a joint sitting available at the state level? देख के रखिएगा इनके आंसर और अपने नोट्स में डाल लीजिए, so as simple as that, ठीक है जी? Now which of the pairs is not correctly matched? अरे वाह वाह, आर्टिकल का आ गया। तो ये सब मेरी टीम ने टाइप करा है, हमारे यहाँ एक देवी जी काम करती हैं, उन्होंने टाइप करा हुआ है, तो मैं भी इनफैक्ट इनको पहली बार ही देख रहा हूँ। तो अब ये आर्टिकल्स देख के पूछा, तो BHU is stressing upon ruttoing of articles. Now which all articles do you remember? Linked in the card above. I'll leave a link in the description as well. So money bill article 110 ये तो सही है। President's rule and states article 356 ये भी सही है। Proclamation of national emergency आते 352 के अंदर। Judicial review 243 नहीं। Uniform Civil Code article 44 in which state has UCC? Let's go, it's absolutely correct. So judicial review जो है, अगर आप कई किताब पढ़ेंगे तो वो सिर्फ 13 बताएंगे, दूसरी किताब पढ़ेंगे तो वो 32 भी कर देगा, तीसरी किताब पढ़ेंगे तो 13, 32, 226 भी दे देगा।
तो जनरली स्पीकिंग मोस्टली तीनों ही आर्टिकल्स के अंदर इंश्राइंड है. इट कैन बी आर्ग्यूड कि यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे तो कह रहा है राइट. अच्छा, और दो डॉक्ट्रिन्स कौन कौन सी है 13 के अंदर, या तीन इनफैक्ट. डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी. ऑल थ्री डॉक्ट्रिन्स आर रिलेटेड टू 13. नहीं समझ में आया कि मैंने क्या बोला, कोई बात नहीं है, इसी चैनल पे लेक्चर्स पढ़े, यूट्यूब पे डालिए डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स TLOI, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी TLOI, मिल जाएगा काम, समझ लीजिएगा 13 के अंदर क्या काम है. इट्स एज सिंपल एज दैट. ठीक है जी. Which of the following is the correct order of the words as they appear in the preamble of the Indian Constitution? So we the people solemnly resolve to constitute India into a, ठीक है जी, sovereign, socialist, secular, democratic republic. Sovereign republic नहीं, ये रिपब्लिक, ये ऑप्शन तो गया. Sovereign democratic नहीं. Sovereign democratic federal ना जी ना, ये भी गया. Option A is the correct answer. Purely a ratta based question. नहीं आता कोई बात नहीं. If you got in this wrong, absolutely okay. Preamble खोलिए, अपने नोट में मार्क करिए, और ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है ना, ऑर्डर याद करने की कोशिश कर लीजिए. as simple as that. The word federal actually is nowhere given in the constitution. Federal court के कॉन्टेक्स्ट में तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे रखा है, वैसे फेडरल कहीं पे भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में. फेडरल एज इन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहीं पे भी नहीं है. A bill which authorizes the government to raise or spend money is called a, what the hell is a government bill? No, certainly not. Private members bill, certainly not. Homework for you. What is a private members bill? ये ऑप्शन देखने या मेरे बोलने से कुछ नहीं होने वाला, या ये लेक्चर्स भी देखने से कुछ नहीं होने वाला. ये आपको कि जिज्ञासा जगानी चाहिए कि अरे ये तो मैं काट तो रहा हूँ, बट ये है क्या, क्या ये कुछ है. Is it raised by a minister or is it raised by a person who is not a minister? Can a bill which is a private member bill eventually become into an act, and has there been any such private member bill in India's history that has ever become an act? मार्क करिए, देखिए. मनी बिल इज द बट ऑब्वियस चॉइस. ऑर्डिनरी बिल फिर पूछ ही क्यों रहे हो अगर ऑर्डिनरी बिल है तो, राइट. Now, with reference to the reservation for seats for women in Panchayati Raj institutions, which of the following statements is/are correct? बाप रे बाप, यह आ गया थोड़ा UPSC स्टाइल प्रश्न. It is provided that for an Article 243D, Clause 3 of the Constitution, I don't know whether they have typed it correctly or not. देख लीजिएगा भाई, देखिएगा. The reservation shall cause to have effect on the expiration of the period specified in Article 334. This is an either you know question or you don't know question. अब I'm being honest with you, when I seen this question, तो अभी तो मेरे भी दिमाग में मैं भी फंसा हुआ हूँ कि अरे बाप रे क्या आ गया. Now certainly पंचायती राज सेक्टर तो 243 के आसपास ही है, इतना मुझे broadly याद है. This is the way that I'll tackle this question if I really have to attempt it in the exam. 334 के तहत अभी 104th amendment हुई थी, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है. So it is touching on 334 and it's talking about ये आपकी जो SC ST एंग्लो इंडियन जो रिजर्वेशन जो वगैरह अबॉलिश कराई थी हमने 104th amendment से. 334 में जहाँ तक मेरे को याद है, ये विमेन की तो रिजर्वेशन के बारे में कोई बात नहीं की गई, और ऐसा कोई टाइम लिमिट भी नहीं लगाई गई. और पॉलिटी में टाइम लिमिट लगाने का मतलब है कि जी थोड़े थोड़े टाइम तक इनकी हम रिजर्वेशन दें और उसके बाद ख़त्म कर दें, बिकॉज नीड ख़त्म हो जाती है. लेकिन ये तो अभी तो इंट्रोड्यूस हुई थी, अभी कैसे अबॉलिश कर देंगे? आई बिलीव दिस इज इनकरेक्ट. दिस वन शुड बी करेक्ट, क्योंकि 243 एंड आई कैन बी इनकरेक्ट ऑन दिस. I can be absolutely incorrect. I'm just solving it as the questions are coming to it because I like to do that. Because मुझे लगता है कि जितने जितने क्वेश्चन हमारे भी प्रैक्टिस हो रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन उतनी भी हमारी रिविजन हो सकती है. इफ आई एम इनकरेक्ट ऑन दिस, ठीक है, कमेंट्स में उतर के थोड़ी सी बेइज्जती कर लीजिए, और क्या होगा, कर लीजिएगा, बता दीजिएगा. 243D3 जरा देखिएगा. आई एम नॉट मेकिंग एन एडिट कि मैं पीछे से छुप के बैराक जाके देंगे और आके आपको बताऊंगा. जो है यही है. अगर मुझे एग्जाम में ऐसा कोई और रिलेटेड भी प्रश्न हो, ये नहीं कि ये वाला सेम, ऐसा ही कुछ ए बी बोथ ए एंड बी नाइदर ए बी ऐसा कुछ करना हो, तो मैं ऐसे सॉल्व आउट करूंगा, सो दैट एटलीस्ट अगर मैंने तुक्का भी मारा है तो एक तरीके से रीजनेबल तुक्का है कि नहीं.
The final authority to expound, wow, expound the Indian Constitution rests with. अच्छा जी, expound का मतलब क्या होता है? इंटरप्रिटेशन करना, उस चीज का मतलब निकालना. प्रेसिडेंट तो मतलब नहीं निकालेगा. प्रेसिडेंट तो वैसे भी इट्स टिट्यूलर हेड. टिट्यूलर, TITULAR. टिट्यूलर हेड मीन्स कोई पावर नहीं है, सिर्फ स्टेटस है इस बंदे के पास. यूपीएससी लॉ ऑप्शनल में बहुत बार ये प्रश्न पूछा होता है. इन इंडिया प्रेसिडेंट इज अ टिट्यूलर हेड. इलैबोरेट, एलूसिडेट. ठीक है जी, फिर आंसर लिखेंगे हम साथ. प्रेसिडेंट ना. प्राइम मिनिस्टर बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब निकालेगा तो फिर मिनिस्टर किस बात का? वो तो एग्जीक्यूटिव है ना. एक्ट पास करेगा लेजिस्लेचर, मतलब, और उसको फोर्स में लेकर आएगा, एग्जीक्यूट करेगा एग्जीक्यूटिव. पार्लियामेंट मतलब निकालेगा ना. वाह, ये तो अच्छी खासी ड्राइंग बन गई. नहीं, कौन मतलब निकालेगा? सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएंगे ना. एडवाइजरी जुरिडिक्शन कहाँ दे रखी सुप्रीम कोर्ट की? 143. ऑर्डिनेंस कहाँ पास होती है प्रेसिडेंट की? 123. सुप्रीम कोर्ट के पास हम प्राइमरली, जब हमें पता नहीं चल रहा होता कि भाई साहब ये कॉन्स्टिट्यूशन में इस शब्द का मतलब क्या, लाइक फॉर एग्जांपल आर्टिकल 141 में दे रखा है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट डिसाइड्स दैट ऑल कोर्ट्स आर बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. मतलब द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स. डज दैट इंक्लूड द सुप्रीम कोर्ट एज वेल? ऐसे प्रश्न पूछने के लिए कौन बताएगा आपको? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो. एज सिंपल एज दैट. ये वाले आसान प्रश्न है, लेकिन बीच वाले पिछले एक दो मुश्किल थे. कैन लीव इफ यू डोंट नो. Who among the following is responsible for the revenue sharing between the state government and the local government? So basically it's talking about पंचायत. कहाँ दे रखा है पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी? 11th and 12th शेड्यूल. हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन? होमवर्क फॉर यू. सारे शेड्यूल्स पर रट्टा मार के रखेंगे. चीफ मिनिस्टर रेवेन्यू शेयरिंग करेगा ना. चीफ मिनिस्टर तो कहेगा सारे मेरे पास दे दो पैसे. गवर्नर, स्टेट फाइनेंस कमीशन. दिस इज परहैप्स द आंसर बिकॉज हम स्टेट लेवल पे बात कर रहे हैं. सो नाउ होमवर्क फॉर यू. 243 ऑनवर्ड्स आर्टिकल्स रिवाइज करके. वेरी वेरी क्रूशल आर्टिकल्स. आई थिंक अभी रिसेंट लीगल करंट अफेयर भी हुआ है. पार्ट 9B ऑफ द 97th अमेंडमेंट. आई बिलीव द आर्टिकल वाज टचिंग फ्रॉम 243HZ to 243HT if I am not mistaken. Right? Part 9B has been inserted by the 97th amendment has been struck down by the Supreme Court, but everything else remains. So पूरी amendment खारिज नहीं हुई. Part of it using doctrine of severability. अगर नहीं समझ में आ रहा कि मैं ये सब क्या बोल रहा हूँ, पॉलिटी पे काम करने की ज़रूरत है और इस चैनल को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेंगे तो इन्हीं टॉपिक्स पे आपको सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे. ठीक है जी. तो दिस परहैप्स द आंसर इज स्टेट फाइनेंस कमीशन. बट आप कंफ्यूज होंगे अगर आपको नहीं पता होगा इन दीज टू ऑप्शन. गवर्नर क्या करेगा बीच में? गवर्नर इज जस्ट अकिन टू प्रेसिडेंट. कुछ करता कराता है नहीं, बस साइन करवा रहा है कि चलो. स्टेट फाइनेंस कमीशन या फाइनेंस कमीशन. अगर आपको ये ज्ञान नहीं होगा कि फाइनेंस कमीशन स्टेट लेवल पे भी होती है तो मर जाएंगे. इसीलिए यहाँ पे गलती खा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में पढ़ लेंगे. तो 280 के अंदर फाइनेंस कमीशन तो सेंट्रल लेवल पे है. स्टेट फाइनेंस कमीशन कहीं 243 के आसपास होगी. आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट आंसर एंड आई एम बीइंग ऑनेस्ट विद यू. एग्जैक्ट आंसर मतलब एग्जैक्ट आर्टिकल, तो कृपया करके ज़रा देख लीजिएगा. प्रोविजन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर SC/STs हैज बिन मेड. NCSC के बारे में बात कर रहा है. ट्रिक है, याद हो ना हो. इसने, बंधु ने हमारा थोड़ा जीवन यहाँ पे आसान करा कि कोई ABC यहाँ पे नहीं दे देता तो मैं भी फंस जाता यहाँ पे. बट यूजली 338A, क्योंकि ये अमेंडमेंट से आई थी, तो अमेंडमेंट से कोई भी आर्टिकल आया हुआ आप हमेशा देखेंगे उसके एंड में एक पूंछ होती है और उस पर ABCZHZT वगैरह वगैरह लगा होता है. ये अमेंडमेंट से आई थी तो 338A. ठीक है जी. ये चीज़ आप एलिमिनेशन से बेसिकली सॉल्व आउट कर सकते हैं. Which of the following is not mentioned in the preamble of the Indian Constitution? Sovereign है, socialist है, republic है, federal तो नहीं ना जी ना. Federal या federation of states कहीं नहीं है. That's why we claim ourselves to be federal, but we have been labeled as quasi-federal. Quasi-federal means exactly not quite.
अगर मैं मतलब निकालना चाहूँ कॉजी का, नॉट क्वाइट, सो समथिंग लाइक अ प्रॉक्सी ओनली, कि वेदर मतलब आप बिना क्लास में हुए क्लास में थे नहीं, लेकिन मित्र को बोल रखा था कि अपनी प्रेमिका के साथ जा रहा हूँ, तुम मेरी अटेंडेंस लगा देना, तो आप कॉजी तरीके से कॉजी और कॉजी प्रेजेंट इन द क्लास। ठीक है जी। तो जब भी कोई कॉजी बॉडी समझेगा कि अरे कॉजी कॉजी कर रहा है, इसका मतलब वो बॉडी है तो सही, थोड़ी बहुत कैरेक्टर तो मैच हो रहा है, लेकिन पूरा नहीं। सो फॉर एग्जाम्पल लेट अस से इफ आई वर शूटिंग दिस ऑन अ फोन, दैट्स अ कॉजी कैमरा। कैमरा पूरा नहीं है, सो ऑब्वियसली इट वोंट हैव द फंक्शंस ऑफ अ डीएसएलआर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट थोड़ा बहुत काम तो चल ही जाता है ना जी। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड। ये तो बहुत ही बढ़िया इन्होंने सवाल दिया, इससे ज़्यादा आसान सवाल है नहीं। नाउ पॉज द लेक्चर, 356 और 360 में जाके पढ़िए कि क्या हो रहा है। अच्छा 358 भी पूछा हुआ है, 358 भी देख लीजिएगा। चलिए सोने पे सुहागा 359 में देख लीजिएगा, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है 359 के तहत, और वहाँ पे 2 आर्टिकल्स दे रखे हैं व्हिच कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। कौन सी अमेंडमेंट से ये इंट्रोड्यूस हुए थे, और वो दोनों आर्टिकल्स का नाम नोट कर लीजिएगा। ठीक है जी। तो अब एक्चुअली जब पॉलिटी भी हम लोग पढ़ा रहे होते हैं ऑफलाइन, व्हेन आई टीच विद माय ऑफलाइन बैचेस या ऑनलाइन कोर्स वगैरह में, इट्स ऑल सो इंटरकनेक्टेड कि आप जैसे एक क्वेश्चन पूछेंगे 5-7 पॉइंट साथ में निकल आते हैं। एंड जब पॉलिटी इस लेवल पे तैयार होती है, फिर आप चाहे यूपीएससी जाएं, चाहे आप जुडिशरी जाएं, चाहे आप एलएलबी जाएं, चाहे आप एलएलएम जाएं, आपका सारा काम बेसिकली हो जाता है वहाँ से। Under which of the following articles of the Indian Constitution the Supreme Court has the power to review its own judgment and order? तो power of review से याद आया क्यूरेटिव पिटिशन भी होती है, अशोक हुर्रा वर्सेस रूपा हुर्रा केस लॉ है। 135 में तो नहीं दे रखा, 136 में भी नहीं दे रखा, क्योंकि 124 से सुप्रीम कोर्ट में ये कहाँ पे दिया हुआ है, अंडर विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 5, इट हैज 5 चैप्टर्स। द फर्स्ट वन इज आपका क्या है, द एग्जीक्यूटिव, चैप्टर 2 द पार्लियामेंट, Chapter 3 legislative powers of the president, Chapter 4 is the union judiciary, Chapter 5 is CAG। तो वहाँ से जब वो शुरू होता है तो 124 से 147 एक्सटेंड होता है, और 136 में तो SLP दे रखी है, और SLP से पहले वो सर्टिफिकेट ऑफ अपील के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि सारी अपैलेट जुरिस्डिक्शन वहाँ से चलती है। 131 के अंदर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन दे रखी है, 137 में ये पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट्स है। इससे याद आया 141 में क्या दे रखा, 142 में क्या दे रखा, 43 एंड 45 को रिव्यू कर लीजिए, लेक्चर पॉज कर लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन की बेयर एक्ट खोलिए और इन आर्टिकल्स को एक बार रिव्यू करिए। दिस इज गिविंग यू अ हिंट दैट what can the examiner ask you. Which of the following is not provided by Part 4A, Fundamental Duties of the Indian Constitution? This is a negative question, not provided. अब ये ज़्यादातर याद नहीं रहती, so we are going to use the process of elimination and some common sense. To respect the national flag should be. So let us say even if I'm sure कि हाँ यार 70% तो fundamental duty होनी चाहिए. To promote the spirit of brotherhood amongst all people of India, ये भी होनी चाहिए, right? To preserve the rich heritage of a composite culture, ये तो 100% होनी चाहिए। To respect our parents and teachers, अब टीचर्स ही हमारा बदतमीज आदमी निकला है तो किस बात का रिस्पेक्ट करेंगे। पेरेंट के साथ कभी कभार बनी नहीं, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई, आई बिलीव ये नहीं होगी इतनी एक्सप्रेसली, मतलब होनी चाहिए लेकिन होगी नहीं, क्योंकि कानून इतनी ब्रॉड एंगल में कभी सोचता नहीं और ब्रॉड चीज़ें ऐसे लिखता नहीं। अब फिर से लेक्चर पॉज करने का वक्त आ गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज जाके उठाइए 51A में। पार्ट 4A was inserted by which committee, मतलब on recommendation of which committee, which amendment brought in part 4A। ड्यूटीज के ऊपर आप नज़र मारेंगे और मुझे बताएंगे कि वेदर आई एम करेक्ट और इनकरेक्ट, और K नंबर की ड्यूटी कौन सी अमेंडमेंट लेकर आई थी, और इस टाइम टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है। ये एक लेक्चर से अगर आप मेरे साथ काम करेंगे और आप अपने नोट्स बना लेंगे तो आपको पॉलिटी में बहुत मदद मिल जाएगी। और ऐसे ही हमने DULLB वगैरह के भी क्वेश्चंस डिस्कस करे हुए हैं चैनल पे। आज हम गाड़ी कहाँ तक खींच के जा रहे हैं जी, 25 पे, देन उसके आगे 26 पे ले जाते हैं। ठीक है जी। द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स प्राइमरली एम्फसाइजेस कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। अच्छा जी, ह्यूमन राइट्स, पहली बात ह्यूमन राइट्स हैं कहाँ पर, ह्यूमन राइट्स कहीं पे इंटरनेशनली कहीं पर हैं। सो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स
इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है? 10th दिसंबर। और ये अडॉप्ट कब हुए थे? मतलब इन केम इनटू फोर्स 1948 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, या 48 शुड बी। होमवर्क फॉर यू आफ्टर दिस क्वेश्चन, यूडीएचआर के बारे में पढ़ेंगे। राइट टू रिलीजन, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू प्रॉपर्टी, डिग्निटी ऑफ मैन एज अ ह्यूमन बीइंग। कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स प्राइमरली एम्फसाइजेस राइट टू रिलीजन। ना भैया, रिलीजन का क्या ही करोगे, धर्म से ऊपर इंसानियत है। राइट टू इक्वालिटी कैन बी द करेक्ट वन, बट वील वेट। राइट टू प्रॉपर्टी, अरे हटाओ पर, ये तो बेचारे को वैसे ही हमने फंडामेंटल राइट्स उठा के 300A के अंदर मेयरली लीगल राइट छोड़ दिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल भी कहते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन दे रही है राइट, बट है लीगल राइट क्योंकि 44th अमेंडमेंट ने बोल दिया था। Firstly, it was mentioned 19(1)(f), then it went to 31, then it went to 300A. But that human rights kahan associated? Dignity of man as a human being, I'll go with this. I don't know what the examiner marked it as, but that is what the concept of human rights is, and that is what it primarily emphasizing. It is not primarily emphasizing right to religion. Religion से तो वैसे ही कानून वानून वाले नमस्ते करके जाते हैं। Right to equality could have been the answer, but this is a better option because the question is saying primarily emphasizes, right? ठीक है जी। Which of the following statements about the Speaker of Lok Sabha is not correct? Okay, be careful not to miss out these notes. Got it? He has the power to adjourn the House sine die, or sine die कई लोग बोलते हैं, sine die is without another date. Now this is a tough question. He may resign his office by writing to the deputy speaker. This is not true, तो मतलब this is definitely true, तो ये option तो काट दो। He has the power to adjourn the House sine die. चलो जी आगे देखते हैं। He has the power to summon the House even after propagation. What the hell is propagation? Question paper में propagation है। It should be prorogation. Prorogation होगा ये। I believe it should be a misprint. ठीक है, हमारी गलती नहीं है, क्वेश्चन पेपर के अंदर prorogation है। He shall not vacate. I don't think he has the power to summon. prorog के बाद क्या बोलते हैं, हाउस को समन की पावर वैसे किसको दी हुई है? प्रेसिडेंट को। चलिए जी, इस ऑप्शन को साइड रखते हैं अभी के लिए, थोड़ा ये हाई प्रोबेबिलिटी हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे सोचिएगा एग्जाम में, ये नहीं कि कूद कूद के कुछ भी मार्क कर दिया कि हाँ फटाफट देखा था मैंने तो फटाफट कर दिया, भाई आसान आया था, ओह, है ना। He shall not vacate his office until immediately before the first meeting of the new house after the dissolution. ये तो ठीक बात है जी, तो ये ऑप्शन क्योंकि वो नॉट करेक्ट है तो ये तो सच हो गया। अब हम रह गए इन दोनों के अंदर, अब कंफ्यूजन आएगी। The power to adjourn the house sine die without any other further date, क्या बात है कहीं तो पढ़ा नहीं है, ये है वो है। लेकिन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये ऑप्शन के अंदर पावर टू समन तो सिर्फ भैया प्रेसिडेंट के पास है पावर, यही आंसर होगा। और ये प्रोरोगेशन है, प्रोपोगेशन नहीं होगा, ठीक है जी। The 11th schedule of the Constitution. Now again, if I'm mistaken, do some बेइज्जती in the comments. What is the problem, right? हमारी इज्जत बेइज्जत करिए और क्या करेंगे, करिए। Everyone's 19(1)(a freedom of speech and expression, but 19 clause 2 के अंदर reasonable restriction में defamation जरूर आ जाती है। That's a ground, reasonable restriction. The 11th schedule of the Constitution is related to which with of the following. ये तो हमारी गलती होगी, नहीं, ये which है, which of the following. 11th schedule, 11th and 12th are always PM, पंचायती and municipality, पंचायती राज। होमवर्क 12 के 12 शेड्यूल्स की लिस्ट बनाई और रट्टा मारिए। 22, the election commissioner can be removed by, कहाँ पे दिया हुआ है, 324 के आसपास दिया होगा, राइट। सो ऑन द सेम ग्राउंड एज अ सुप्रीम कोर्ट जज, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर के पास पावर होती है। और एक बात और याद रखिएगा, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, उनके बीच में कोई पावर का डिफरेंस नहीं होता, दोनों इक्वल लेवल पे ही होते हैं। नाउ दिस इज अ लाइन फ्रॉम NCERT 11th स्टैंडर्ड। ये सब आप तब पढ़ते हैं जब आप UPSC की तैयारी करते हैं, लेकिन सब कुछ कनेक्टेड है तो ठीक बात है। इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड बाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर सर्टनली नॉट, इनको हटाओ। मिनिस्टर आके तो पक्का इलेक्शन कमिश्नर को उड़ा के पावर दे दी तो हो गई हमारी पॉलिटिकल आज कर जाएगी। प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, परहैप्स
perhaps 3/24 में दे रखा है, because I specifically remember this guy certainly is not at the pleasure of the president. Homework for you. Which of the posts are not at the pleasure of the president? देख लीजिएगा. Right. Chief Justice of India है. I'm sure it's the president on the recommendation of the Chief Election Commissioner. So this is how you use elimination, and then well, you go ahead and mark it, right? A judge of the Supreme Court may resign his office by writing a letter to the Chief Justice, President, Prime Minister तो certainly नहीं, Law Minister तो certainly नहीं. अब ये दो confusing options हैं क्योंकि a judge पूछा है, so this is a PONA judge. What is a PONA judge? A judge who is not the Chief Justice. So that's इनकी pronunciation आती है PONA, right? So a judge of the Supreme Court may resign his office by writing a letter to, I believe it should be the president, because I'm using the logic because the president is appointing the judge. So usually अगर आप constitution में रिश्तेदारी देखेंगे resignation or appointment की, so it's a two-way system except for certain posts, which we are not going to get into right now. Otherwise ये lecture कभी खत्म नहीं होगा. Who is the ex officio chairman of Council of States? 8वीं कक्षा का प्रश्न. कहाँ पर है हमारे वाइस प्रेसिडेंट भैया? इसमें तो सोचना भी नहीं चाहिए, because if you are getting such questions incorrect, तो बहुत 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 गड़बड़ है. ठीक है जी. Article 1 of the Indian Constitution declares India as, it's not, certainly not a unitary state. It is ये क्या बोलते हैं, India, that is Bharat, or is it Bharat, that is India? India, that is Bharat, shall be a union of states. United States of India. It's a funny option. Both unitary state and United. ना. ठीक है जी. अब अगले में कितने, 26 से लेके 50 कल परसों में देखते हैं जब वक्त निकलता है. तब तक आपको जो काम बताया गया है कृपया करके वो कर लीजिएगा. अदरवाइज इन सेशंस का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ऐसे सेशंस भरपूर होंगे यूट्यूब पे, बहुत सारे हैं. लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करी, तो ठीक है भाई, ये भी सही. ठीक है जी. विशिंग यू ऑल द बेस्ट. टेक केयर. बाय.